Assalamualaikum dear students. We are talking about ordinary differential equations in this course. अभी तक हमारे कोई 21 lectures में we have discussed different techniques in order to solve the ordinary differential equations. Lastly, the topic that we were discussing in last 2 weeks was power series solution of ordinary differential equations and the Legendre equations and Bessel's equation and their power series solutions. We learned different techniques in order to solve the differential equation with variable coefficients and with the constant coefficients. And remember that these all equations which we are considering into this course are the linear differential equations. We are not talking about the non-linear equations. So in the scope of the course, we are learning different techniques, we are learning different terminologies and different methodologies in order to tackle the ordinary differential equations, whether they are having variable coefficients or the constant coefficients. So in particular course, in this particular lecture, we are talking about some special type of the transforms which are called the Laplace transforms. Before starting Laplace transforms, people must know that what does the transformation mean. A transformation actually changes your one particular function into another, your one particular object into another. If we apply any transformation on any physical object, it changes its shapes or its configuration, or you can say its rotation or its place. It will bring any kind of the change into that according to the definition of that transformation. While talking about the transformation in mathematics, you people have encountered with the different types of the transformations, and still now you are discussing different types of the transformations which are useful and which are more handy to tackle the complicated problems. So let's talk about the Laplace transform. In this particular content, we will be talking about the definition of Laplace transforms, inverse transforms, transformation of derivatives, Laplace or inverse transformations of product of functions, use of Laplace transform in initial value problems. So these are the key points that those will be discussed in this topic. Today's lecture, in the next 2 or 3 lectures, we will be talking about all these things. The main concern of our today's lecture is what is the Laplace transform and how to find a Laplace transform of any function. And in the preceding lecture or in the next lecture, we will be talking about the inverse Laplace transform of any function. The review material for this transformation is that improper integral with infinite limits of integration. You people have solved different type of the integrals, finite integral, infinite integrals, and the proper improper integral in your calculus. Improper integrals are actually such an integrals in which your limits are from minus infinity to positive infinity, 0 to positive infinity, or minus infinity to 0, or somehow something like that. What we do actually over there, we simplify those integrals and we make them in such a form that we less encounter with infinity and we solve them. दूसरी चीज़ जिसके ऊपर हमारा फोकस होगा या जो चीज़ यहाँ पे हमें यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, वो है पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन. पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन जो ये भी आपने इंटीग्रेशन में आप करते हैं. जब आपके पास कॉम्प्लिकेटेड डिनोमिनेटर इन्वॉल्व हो जाते हैं इंटीग्रेशन में, तो वहाँ पर आप क्या करते हो कि उसको डिकम्पोज करते हो और वहाँ पर उसको कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं एंड देन यू विल गो अहेड विद द इंटीग्रेशन. अब हम ज़रा बात कर लें अबाउट द डेफिनेशन ऑफ Laplace ट्रांसफॉर्म. Laplace ट्रांसफॉर्म इज एक्चुअली a kind of transformation which changes your function from one form to another, from one variable to another, if I say more precisely. If your function is available in variable t, it would be converted into the variable s. So the definition of Laplace transforms, for the definition of Laplace transform, the introductory content we are going to study in elementary calculus. You learn the differentiation and integration and transforms. अब आपकी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जो हैं, जब आप उसको किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हो तो आपका फंक्शन क्या होता है, किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. अगर आप किसी पोलिनोमियल टाइप ऑफ द फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हो तो उसकी डिग्री एक कम हो जाती है. फॉर एग्जांपल, आप क्वाड्रेटिक फंक्शन के ऊपर अप्लाई करोगे तो वो लीनियर बन जाता है, और अगर आप इंटीग्रल उसके ऊपर अप्लाई करोगे तो वो क्यूबिक बन जाता है, उसकी एक डिग्री एक्सटेंड हो जाती है, बढ़ जाती है. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है
ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको जब हम किसी फंक्शन को अप्लाई करते हैं तो वो फंक्शन अपनी नेचर चेंज कर लेता है, अगली किसी और में कन्वर्ट हो जाता है, कोई नई शेप जो है वो अडॉप्ट कर लेता है। इसी तरह से जब हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो भी यही काम कर रही होगी। अब जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो फंक्शन एक नया फंक्शन बन जाता है। तो अगर हम उसी फंक्शन की वापस दोबारा से अपनी फॉर्म लाना चाहें तो हमें उसका एंटी डेरिवेटिव लेना पड़ता है। सो वी लर्न एक्चुअली बोथ टेक्निक्स, दे बोथ आर ट्रांसफॉर्म बट दे सर्व इन सच अ वे कि एक अगर फंक्शन को वन फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो दूसरा उसको रिवर्स बैक कर देता है। तो दे आर एक्चुअली इनवर्स ऑफ ईच अदर वी कैन से इन लेमैन लैंग्वेज। तो इसी तरह का काम जो है वो हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म या इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों में करेंगे। अगर हम देखिए सीखेंगे कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन की क्या होती है तो हम दूसरी चीज़ जो सीखेंगे कि इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो कैसे क्या होती है। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ तो ये थी कि जब हमने डेरिवेटिव एक ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हमने एक्स के ऊपर लगाया दैट बिकम्स 2x, और जब हम इसको इंटेग्रल पर लगाते हैं तो वो फंक्शन हमारा क्यूबिक फंक्शन बन जाता है। मीन्स इट हैज़ चेंज्ड, इट चेंज इट्स नेचर। तो अब एक और चीज़ बिफोर स्टार्टिंग विद लेप्लास ट्रांसफॉर्म, तो एक और चीज़ है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है उनमें एक उनकी लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है। ट्रांसफॉर्मेशंस आर लीनियर। अगर आपने अपने लीनियर अलजेब्रा के कोर्स को थोड़ा सा रिकॉल करें तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लीनियर कैसे होती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की लीनियरिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसकी बेसिक ये है कि एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे होते हैं और स्केलरली मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या करती है कि स्केलर जो है वो फॉर एग्जांपल अल्फा एक्स प्लस बीटा जी ऑफ एक्स, तो इसमें एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब इन्वॉल्व हुई तो हमने इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म फंक्शन लगाया डी बाई डी एक्स। जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो जो स्केलर है दैट इज़ मल्टीप्लाइड आउटसाइड, और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो डायरेक्ट आपकी जो है वो एफ ऑफ एक्स के ऊपर लगी। एंड सिमिलरली बीटा आपका बाहर आ जाता है और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो जी डैश ऑफ एक्स के ऊपर लग गई। सिमिलर इज द केस विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन। आप जो भी ट्रांसफॉर्मेशन देखें और अगर आप कहें कि वो लीनियर है तो लीनियरिटी का मतलब ये है कि इट सेटिस्फाई द बेसिक एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट Laplace transformation. In this section we will examine a special type of the integral transform. अब यहाँ से हमें बात क्या समझ आती है कि Laplace transform जो है वो भी एक integral transform की एक फॉर्म है जिसको हमने Laplace transform का नाम दिया हुआ है। In addition to possessing the linearity property, the Laplace transform has many other interesting properties that make it very useful in solving the linear initial value problem. Linear initial value problems, you people know that initial कंडीशन जब किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ एसोसिएटेड होती हैं तो वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। तो हम यहाँ पर हम होली इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे वाइल यूजिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो एक इंटेग्रल ट्रांसफॉर्म है और उसमें एक चीज़ जो है कि वो आपके उसमें वेरिएबल जो है वो आपका अगर टी है तो एस में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा ये है कि ये हमें हेल्प करता है टू सॉल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस associated with the initial value condition or boundary value condition. बेसिक डेफिनेशन और नोटेशन जो है लेप्लास ट्रांसफॉर्म की उसकी हम बात करते हैं। लेट एफ बी अ फंक्शन फॉर टी और इफ टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन द इंटेग्रल लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू। अब जैसे शुरू में हमने बात की कि इट इन्वॉल्व्स improper integral, so this is an improper integral 0 to infinity. ये चेंज नहीं होगा। दिस इज द बेसिक, यू कैन से दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द बेसिक नोटेशन फॉर लेप्लास ट्रांसफॉर्म। ये हमने एज इट इज़ अपने ज़हन में रखना है कि जब हमने किसी फंक्शन के लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है तो उसका मतलब है कि हमने उस फंक्शन का इम्प्रॉपर इंटेग्रल लेना है। ये फंक्शन इटसेल्फ होगा और उसके साथ हमने एक्स्ट्रा जो टर्म आ रही है वो है ई पावर माइनस एस टी, ये हमने ले लेना है। अब ये देखो कि ये आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साथ में कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे आपकी एक्चुअल में लग क्या हो रही होती है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आपको पता है कि हाउ टू अप्लाई दैट, और उसमें हमने फिर उसको प्रॉपरली सॉल्व करके हम किसी भी फंक्शन की लेप्लास ट्रांसफॉर्म विद दिस बेसिक फार्मूला हम उसको डिड्यूस कर सकते हैं। ऑल्दो आगे जाके हम इसको इतना डिटेल में यूज़ नहीं करेंगे। वी विल बी सिंपली लर्निंग डिफरेंट टैक्टिक्स, डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट मेथड्स के हम विदाउट यूजिंग दिस डेफिनेशन मेथड हम डायरेक्ट लेप्लास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन की फाइंड आउट कर सकें। तो अब ये वाइल डिफाइनिंग द इंटेग्रल टू, ये जो है द रिजल्ट इज अ फंक्शन ऑफ एस। अब ये फंक्शन आपके पास टी में था और ये कन्वर्ट होकर जब आएगा तो आपके पास ये एस की फॉर्म में आएगा। इन जनरल डिस्कशन वी शैल यूज द लोअर केस लेटर टू डिनोट द फंक्शन बीइंग ट्रांसफॉर्म। जो फंक्शन आपके पास ट्रांसफॉर्म होने जा रहा है उसको हम लोअर केस लेटर में यूज़ करेंगे।
डिनोट करेंगे, और जो फंक्शन आपका ट्रांसफॉर्म हुआ है उसको हम कैपिटल लेटर में यूज करेंगे, कैपिटल लेटर टू डिनोट द लेप्लास ट्रांसफॉर्म, उसकी इस लेप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर हम इसको देखें तो अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ टी है उसके ऊपर हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगाई, प्लीज़ नोट दैट दिस इज द नोटेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म। ये आपका इटैलिक वाला एल है एंड देन पुट द कर्ली ब्रैकेट्स एंड एफ ऑफ टी दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। सिमिलरली ये एफ ऑफ एस आपका कैपिटल में चला गया और आपके पास जो स्टैंडिंग वेरिएबल है दैट इज एस, यहाँ पे आपके पास टी था दैट इज बीन कन्वर्टेड इनटू एस एंड वी विल लर्न दैट हाउ डज इट कन्वर्ट एंड सिमिलर इज द केस विद द अदर फंक्शंस। अच्छा, अब हम एग्जांपल पे आ जाते हैं कि हाउ कैन वी अप्लाई दिस डेफिनेशन और टू सम फंक्शंस। अब हम सबसे सिंपल एग्जांपल के साथ काम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है। देखिए, जो आपके पास इस ब्रैकेट में पड़ा होगा दैट वुड बी योर फंक्शन। अगर तो उन्होंने आपको लैदा से दे दिया देन पीपल कैन से दैट कि यस ये फंक्शन हमारा लैदा से, इसके ऊपर मैंने लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगाना है। लेकिन अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर वो लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो फंक्शन ही है। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन थी वो हमें ये कहती है कि अगर वन है तो वन इज अ फंक्शन, ई पावर माइनस एस टी आपके पास आने, हमने वो डेफिनेशन अप्लाई की 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी 1 डी टी। तो हमारे पास लिमिट बी टू इन्फिनिटी, ये हमने ऊपर वाली जहाँ पे बी की इंसर्शन कर दी और लिमिट बी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी डी टी। जब आप इसके ऊपर ये वन तो वैसे ही रहेगा, जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इंटेग्रल लेते हो तो दैट इज ई पावर माइनस एस टी ओवर एस, तो दैट इज 0 टू बी। जब आप इसको सॉल्व करोगे 0 टू माइनस एस बी प्लस 1, तो ई पावर ये माइनस में है तो ये 1 ओवर एस बी आ जाएगा। एंड जब आप बी की जगह पे इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करोगे तो ई पावर 1 ओवर इन्फिनिटी है, 1 ओवर इन्फिनिटी गिव यू 0। ठीक है, 1 ओवर इन्फिनिटी जो है उसने आपको इसका 0 बना देना है। ये 1 ओवर ई पावर माइनस एस बी हो गया, तो इसने आपको आपका जो पूरी की पूरी टर्म है उसको 0 में कन्वर्ट कर दिया एंड दैट बिकम्स 1 ओवर एस। सो इन सिंपली आपने जो लर्न करना है कि 1 की जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज 1 बाय एस। अब हम दूसरी एग्जांपल एक देखते हैं। फंक्शन अब हमारे पास है टी। अब अगर हम उसी डेफिनेशन को यहाँ पर अप्लाई करें तो थोड़ा सा यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे तो ये आपके पास पहली टर्म आती है माइनस टी ई पावर माइनस एस टी ओवर एस। टी आपके पास सेकंड फंक्शन है, इसको आप यहाँ पर जाकर जब सॉल्व करते हो तो 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एंड 1 ओवर एस, ये आपके पास ये आ जाता है। ठीक है, ये वाली टर्म जो है वो आपकी कन्वर्टेड इनटू 0 हो जाती है, क्योंकि आप टी की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करते हो, या जब लेकर जाओगे ई पावर माइनस एस टी को डिनोमिनेटर में तो ये टी ओवर 0 बन गया। फिर आपने यहाँ पे लॉपिटल रूल लगाना है, ये मैं आपको कुछ वर्ड से भी कर दूँगी। टी ओवर ई पावर माइनस एस टी, ये वाली टर्म मैं आपको सॉल्व करके एक व्हाट्सएप करूँगी कि हाउ वी सॉल्व इट एंड देन 1 ओवर एस 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी डी टी 1 ओवर एस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। अब यहाँ पर ई पावर माइनस एस टी हमने पीछे अभी ये सॉल्व किया है कि ये किसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म है 1 की, तो 1 ओवर एस और 1 ओवर एस तो 1 ओवर एस के। जब टी की पावर 0 थी दैट वाज 1, तो हमारे पास 1 ओवर एस आया। जब टी की पावर 1 आ गई तो हमारे पास ये 1 ओवर एस आया। हमने इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और इसको जहन में भी रखना है कि फर्दर ये जाकर बनता क्या। टी पावर 0 है तो 1 ओवर एस, टी पावर 1 है तो 1 ओवर एस स्क्वायर एंड इट विल एक्सटेंड द सेम वे। अब हम फंक्शन थोड़ा सा हमारा चेंज हुआ है। एग्जाम्पल 3 में ई पावर माइनस 3t है। ई पावर माइनस 3t को जब हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं तो 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी ई पावर माइनस 3t 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एस प्लस 3t। इसको हमने कर लिया। जब हम इसको ये सारा सॉल्व करते हैं तो 0 टू इन्फिनिटी ये हमारा इसके ऊपर इंटेग्रल लगा, ये 1 ओवर ये हमारा जब 0 टू इन्फिनिटी वाला जब ये हमारा हो जाता है इन्फिनिटी वाला केस, उसने इसको वो वाली टर्म 0 जानी, और जब हमारी 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो वाली टर्म हमारी जो है वो 1 ओवर एस प्लस 3 देगा हमें। द रिजल्ट फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट लिमिट टी फ्रॉम टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी। देखिए, जब भी आपके पास माइनस में ये है, माइनस इसके साथ जा रहा है और आप इसकी जगह पे इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसने आपको 0 देना है। कहने का मतलब ये है कि जब भी ई की पावर में माइनस टी का मल्टीपल है तो
उसने आपको देना है 1/, जब ये आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हो तो ये 1/e⁻s+3t फॉर एग्जांपल बन गया। तो ये 1/∞ और 1/∞ आपको क्या दे देगा, 0। ठीक है, सो फॉर s+3 ग्रेटर देन 0 और s ग्रेटर देन -3। अगली एग्जांपल हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि sin 2t है। उसी को हम इसी मेथड के साथ जब सॉल्व करते हैं तो sin 2t हमारा जो है e⁻−st। अब यहाँ पे थोड़ी सी हमें एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन लेटर ऑन वी विल सिंपली कीप ऑन इन आवर माइंड के जो साइन, कोसाइंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं, और या फिर जो आपके पास एक्सपोनेंशियल या अलजेब्राइक फंक्शंस हैं, उनकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म को हम डायरेक्ट याद करेंगे। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम ये बार बार इसको सॉल्व करें और बार बार हम ये सारे जो रिजल्ट्स हैं इनको रिड्यूस करेंगे। वी विल लर्न द फॉर्मूलाज एंड वी विल अप्लाई दैम, लेकिन एट द फर्स्ट स्टेट हमने क्या करना है कि हम इनको साथ साथ करके भी देखेंगे कि एक्चुअली ये आ कैसे रहे हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म इनकी बनती कैसे है। तो उसके लिए हमें एक दो एग्जांपल्स जो हैं वो फर्दर करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर आपने देखा है कि e⁻−st और sin 2t है, तो आपके पास e⁻−st आपका sin 2t को आपने फर्स्ट फंक्शन ले लिया और e⁻−st का जब आप डिनोमिनेटर लेते हो इंटीग्रल तो ये आ जाता है, और 2/s0 to infinity एंड दिस। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो ये वाली टर्म तो आपकी चलेगी 0 में। आप तो जब इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करते हो यहाँ पर तो इसने इसको 0 बना देना है, जब आप 0 सब्स्टिट्यूट करते हो sin 2t में तो इसने इसको 0 बना देना है। सो दिस होल टर्म बिकम 0। हमारी टर्म रह जाती है e⁻−st cos 2t। अब e⁻−st cos 2t में अगेन हम इसका इंटेग्रल लेंगे, तो e⁻−st का इंटेग्रल आ जाएगा e⁻−st ओवर s, तो साथ में आपके पास आ जाता है cos 2t और फिर प्लस 2s ये सारी टर्म और -2/s0 to infinity e⁻−st sin 2t and dt। ये तो कहने के लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो आपकी e⁻−st sin 2t की ही है। तो इसको आप उसकी एक्चुअल नोटेशन में लिख देंगे। यू विल टेक दिस नोटेशन sin लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t, यू विल सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली ओवर हियर। हम देखते हैं कि इस टर्म का क्या बनता है, e⁻−e⁻st। ये हमने जब इसको सॉल्व किया था तो ये आ गया, और साथ में आपके पास आ गया cos 2t, और आता क्या है आपके पास, जब आपके पास -s है तो ये s डिनोमिनेटर में आ गया। अब इसमें जब इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करते हो तब तो इसने 0 बनना है, क्योंकि 1/e⁻−st e⁻st जो है उसने आपको इन्फिनिटी 0 देना है, तो इस टर्म ने 0 हो जाना है। लेकिन जब आप इस पर 0 सब्स्टिट्यूट करोगे देन इट विल गिव यू 1। ठीक है, ये ऊपर वाली टर्म आपकी 1 बन जाएगी। तो ये आपके पास बन जाएगा 2/s² माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4, ये s से मल्टीप्लाई हुआ s², और ये आपके पास ये आ गया। दिस टर्म यू टेक ऑन द अदर साइड। आपको बताया इंटीग्रेशन में आप ये काम करते रहते हो, तो ये टर्म आप दूसरी साइड पे जब लेके जाते हो एंड जो सॉल्व इट प्रॉपरली तो आप इस स्टेप से पहुँचते हो। आपने क्या करना है, इस टर्म को उठा के दूसरी साइड पे ले जाना है, एलसीएम लोगे, एल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t आप लेफ्ट साइड पे रहने दें और बाकी टर्म्स जो हैं वो आप उसको राइट साइड पे ले आएँ। तो आपके पास बन क्या जाता है, ये आपके पास उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गई 2/s² + 4। अब इसमें हो क्या रहा है ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। एक्चुअली आगे जाकर हमारा मेन कंसर्न जो रहने वाला है वो ये है कि साइन की लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है। साइन की लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरह से होती है कि जो उसका एंगल है टी के साथ जो भी उसका मल्टीपल है एंगल का वो आपका ऊपर आ जाता है। दिस इज़ s² एंड दिस इज़ 4। अगर यहाँ पे 1 होता है तो ये बनता 1/s² + 1। अगर यहाँ पे 3 होता तो ये बनता 3/s² + 9। सो दिस पैटर्न विल गो सेम वे। अच्छा, जैसे हमने अभी स्टार्ट में बात की थी लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो भी लीनियर है। हमने बात की कि व्हाट इज़ द लीनियरिटी ऑफ एनी ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियरिटी क्या करती है हमारी किसी ट्रांसफॉर्मेशन की, कि फंक्शन की जो फंक्शनल टर्म्स हैं वो आपस में ऐड भी होती हैं, उसमें बेसिक एडिशन जो है वो इन्वॉल्व होती है, और उसमें जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो इन्वॉल्व होती है। लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेसेस में आपने इस सारी चीज़ को देखा हुआ है। देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस में अगेन ये चीज़ इसी तरह से आ जाती है। सो वी सिंपली से दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्म फॉर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फंक्शन, वी कैन राइट इट एज। तो अब ये आपके पास जो है वो e⁻−st अल्फ़ा आप बाई कॉमन ले लें, ये f(t) एंड बीटा g(t) है। तो जब आप इसके ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हो e⁻−st तो इसने
अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाने आपके फंक्शन के साथ, एंड योर स्केलर विल बी मल्टीप्लाइड आउटसाइड। जब आपने फंक्शन के ऊपर लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगाते हैं तो इसका मतलब है आपने लेप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लगाई है। डेफिनेशन लगाने से मुराद है कि आपने इम्प्रॉपर इंटीग्रल लगाया 0 to infinity e⁻st अल्फा 50 प्लस बीटा g of t एंड यू गॉट दिस। एंड देन आप देखो कि आप इसकी जेनेरिक नोटेशन देखते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फा 50 प्लस बीटा g of t इज इक्वल टू अल्फा इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f50 प्लस बीटा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g of t दैट इज इक्वल टू अल्फा f of s प्लस बीटा g of s। तो आपकी ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म f50 की केस में आएगी कैपिटल f of s में, और लेप्लास ट्रांसफॉर्म g of t की क्या आएगी कैपिटल g of s में, बिकॉज of the property given in 3 Laplace transform is said to be the linear transformation. For example, अब यहाँ पे वो आपको कंबाइन करके दिखाएंगे Laplace transform अगर 1 और 5 प्लस t 1 अलग फंक्शन है, 5 t अनदर फंक्शन, तो आपका होता क्या है कि आपके पास 1 की Laplace ट्रांसफॉर्म आपके पास क्या है 1/s, और t की क्या है 1/s², और 5 जो है वो आपका मल्टीप्लाई होता है, यू टुक दिस 5 आउटसाइड एंड यू सिंपली अप्लाइड इट। इसी तरह से एग्जाम्पल 3 and 4 माइट पॉसिबल समवेयर। तो ये आपके पास ये जो है ये आपके एग्जाम लेप्लास ट्रांसफॉर्म है 4e⁻³ एंड -10 sin 2t। 4e⁻³ एंड -10 sin 2t जो है वो आपके पास 4 लेप्लास ट्रांसफॉर्म है e⁻³ एंड -10 लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t। e⁻³ की जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा है 1/, अगर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में अगर आपके पास यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब ये 4 तो स्केलर है, ये तो आ गया। ये s+3 क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे -3 है तो ये s+3 है, अगर यहाँ पे +3 होता तो ये s-3 होता। सिमिलरली हम जब इसको देखते हैं तो ये माइनस साइन तो एज इट इज़ आ गया 10, एंड देन sin 2t का हमने क्या किया था 2 आपके पास आपके पास जो है वो एंगल और s²+4। तो ये वही चीज़ है, हमने क्या करना है, हमने बहुत डिटेल में बहुत डेप्थ में नहीं जाना, हमने इसके की पॉइंट्स को समझना है और हमने देखना है कि हम डिफरेंट फंक्शन की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिख सकते हैं। हमने इसके ऊपर हैंडी होना है, इसके ऊपर हमने ज़्यादा कंफर्टेबल होना है कि हम डायरेक्ट अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको अप्लाई करते रहें। जैसे आप डेरिवेटिव्स में करते थे कि आप बजाय कि डेरिवेटिव बाय ab इनिशियो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं और उसके लंबा प्रोसीजर करो और फिर जाके उसका डेरिवेटिव लिखो, तो आप अगर उसका फार्मूला लर्न कर लेते हो तो आपको डेरिवेटिव की डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करना आसान हो जाता है। आप डेरिवेटिव को डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल कर लेते हो और आपके काम जो है वो आसान हो जाता है। सिमिलर इज द केस विद लेप्लास ट्रांसफॉर्म। आगे हम देखेंगे कि कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जिनकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमें याद रखनी है और अब वो हमें आगे हेल्प करेंगी इन ऑर्डर टू सॉल्व द डिफरेंट प्रॉब्लम्स। ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म है आपके पास कुछ बेसिक फंक्शंस की। लेप्लास ट्रांसफॉर्म सम बेसिक फंक्शन, तो 1 की तो 1/s होगी। अगर आपके पास t⁻n है तो उसका आ जाएगा n⁻⁴(sn+1). जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर यहाँ पर t था तो t का 1⁻⁴(s⁻2) था, t3 होता तो 2⁻⁴(s+4) आ गया, और ये n = 1 2 3 4 5। अगर आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है तो e⁻at आपने देखना है कि ये a है, तो ये अगर पॉजिटिव है तो s-a, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है तो s+a हो जाता। सिमिलरली साइन kt है तो हमने क्या किया था, एंगल को बाहर लेके ऊपर लेके k s² + k²। कॉज है तो कॉज में कॉज और साइन एक दूसरे को कंफ्यूज करते हैं, लेकिन हमने इसको याद रखना है। अब कॉज kt है तो s/s² + k²। यहाँ पर हमने s ऊपर लेके जाते हैं, s ऊपर होता है और s² + k²। इसी तरह से हाइपरबोलिक फंक्शन की अगर हम देखें तो हाइपरबोलिक फंक्शन में k/s² - k²। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाता है, डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है। सिंपल साइन में और साइन हाइपरबोलिक में ये चेंज है कि आपके पास डिनोमिनेटर में माइनस साइन। यही चेंज जो है वो आपका आगे होगा कॉस के फंक्शन में और डिफरेंट इसके हाइपरबोलिक फंक्शन में। तो हम क्या एक्चुअली कर क्या रहे हैं, वी आर एक्चुअली लर्निंग डिफरेंट formula, different techniques कि how can we apply these transformation to any function and how can get the transform function। ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रही होती है कि आपके फंक्शन को एक नई फॉर्म दे देती है, नई शक्ल दे देती है, नई शेप दे देती है।
हमने इन टेक्निक्स को लर्न करना है और हमने इनकी मदद से सॉल्व किसको करना है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को। आई होप दैट कि यहाँ तक आपको कुछ समझ अच्छा आ गया होगा। बुक में आप लोग चैप्टर 7 को फॉलो करेंगे। चैप्टर 7 में हमने करना है लेप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म, उसके 1-2 थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स को हमने अप्लाई करना सीखना है, एंड देन वी विल बी सॉल्विंग दैट द डेरिवेटिव ऑफ Laplace transform of derivatives and initial value formulas with the help of Laplace transform. These are the key contents that we will be learning. Please keep following your book of DGZ. हमने उसको साथ लेकर चलना है और हम उसी को फॉलो करेंगे। बाकी इंटरेक्टिव सेशन में हम इसके ऊपर फर्दर डिटेल बात करेंगे कि क्या क्या ये सारी चीज़ें हैं। तो थैंक यू सो मच।